Assalamu alaikum, dear student. Wishing you happy and healthy life. Today we will discuss about one of the most important phylum of the bacteria, that is Proteobacteria. The word proteo is originated is based on the Greek word that is proteus. They mean God that change the shapes, various shapes. Its background is related to the Greek language. Anyhow, this is the most important and the largest phylum of the bacteria, that is Proteobacteria. Phylogenetically, it is very large. It has almost, look at the 2000 species and for almost 500 genera. Now, question is that what type of the characteristics this phylum has? This is mostly they are the gram-negative bacteria. And for example, the important one is, look at this, E. coli is one of the important bacteria, major experimental organism it is considered. And when we talk about the metabolic characteristics and lifestyle, they can be the obligate intracellular parasite, and they can live freely in the different habitats, especially soil and aquatic habitats, while they are mostly the chemolithotrophic bacteria. What is meant by the chemolithotrophic bacteria? We have already discussed in our physical class lecture that they can obtain energy electrons by oxidation of the inorganic compounds, not the oxidation of the organic compound. In this way, they can get the energy. Actually, they have there are the difference between the autotrophs and chemolithotrophs, that they have a different energy source. Anyhow, some proteobacteria produce the specialized structures, जैसे कि Proteotheca है, stalk है, buds हैं, various types of the sheets हैं, and complex fruiting bodies हैं. इसके अलावा बच्चों इसके अंदर जो है वो फाइलम्स डेलोविब्रियो और इक्टीसिया जो है वो ज़्यादातर parasitic consider किए जाते हैं. Mean they depend on the organism, other organisms host से एनर्जी लेते हैं. Got it? Now look at the various types or the various classes of the proteobacteria. where proteobacteria की further कौन सी classes हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अभी तक जो है वो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया, gamma proteobacteria, delta proteobacteria and epsilon proteobacteria जो है on the basis of the 16 ribosomal RNA sequences की similarity की basis पे अभी तक ये 5 जो है वो ग्रुप्स विद इन द जो है वो फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया के अंदर जो है वो डिस्क्राइब हो चुके हैं. ठीक है बच्चों. Now we should look at this diagram. Figure number 22.1. This is showing the phylogenetic relationship among the prokaryotes, and these are the proteobacteria. They are highlighted in the different colors, and this part you have discussed in the earlier chapter. This part, while now we are discussing only the proteobacteria, there are the 5 groups of the proteobacteria: alpha, beta, gamma, delta, and epsilon bacteria. Now, what is meant by the alpha proteobacteria? The alpha proteobacteria के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं कि ये oligotrophic bacteria हैं, mean के they are capable of growing in the low nutrient levels. इनको कम खुराक की ज़रूरत होती है. अब आपको आना क्या चाहिए, क्योंकि हम चैप्टर को भी सिर्फ समराइज करने के लिए पढ़ रहे हैं कि इसमें से किस किस तरीके से आप जो मेन चीज़ों को फोकस कर सकते हैं. When we talk about the class alpha proteobacteria, तो alpha proteobacteria का मीनिंग क्या है, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि दे आर ऑब्लिगेट एंड दे ग्रो एट द लो न्यूट्रिएंट लेवल. इसके अलावा इसके मेटाबॉलिक मोड की जब हम बात करते हैं तो ये जैसे आप देखें कि कीमोलिथोट्रोफिक भी हो सकते हैं. उसकी अब व्हेन वी से कीमोलिथोट्रोफिक अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, तो उसका आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर है, इसके अलावा जो है वो राइजोबियम है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ब्रुसेला है और रिक्टेसिया है. ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट पैथोजेंस हैं. अब ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए. अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर अभी तक 7 ऑर्डर्स और 20 फैमिलीज जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं. ठीक है.
अब ये लुक एट दिस डायग्राम, फिगर नंबर 22.2, और ये क्या फिगर शो कर रहा है? ये phylogenetic रिलेशनशिप शो कर रहा है among the major groups और the families within the alpha proteobacteria। ठीक है, इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है? नाउ बच्चों लुक एट द टेबल नंबर 22.1, और इस टेबल के अंदर जो है वो सिलेक्टेड अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। You know very well कि when we talk about the taxonomy of the bacteria, taxonomy of the microorganism, तो आपको पता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टर्स हम कंसीडर करते हैं एट द टाइम ऑफ द टेक्सोनमी, एट द टाइम ऑफ सिस्टमैटिक्स, जिसमें से हमने पढ़ा था कि कुछ जो है वो क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो क्लासिकल कैरेक्टर्स होंगे, और कुछ क्या होंगे, मोलेकुलर कैरेक्टर्स होंगे फॉर द क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है? यू नो इट वेरी वेल, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज and dissimilarities among the various types of the characteristics. Look at the table number 22.2। इसमें बच्चों देखिए, ये आपको ये चीज कंसीडर होनी चाहिए, एक आपको प्रिपेयर होनी चाहिए इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द जीनस, जैसे कि यहाँ पे है कि एग्रोबैक्टीरियम है, कॉलोबैक्टर है, हाइफो हाइफोमाइक्रोबैक्टीरियम है, नाइट्रोबैक्टर है, राइजोबियम दिखाया गया है, ठीक है, रोडोस्पाइरिलियम दिखाया गया, रेक्टिसिया दिखाया गया। अब ये है कि इन दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक तो आपको नेम ऑफ फाइलम्स आने चाहिए, ये जो जीनस आने चाहिए किसके, फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया के, और इसके साथ साथ ये चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं कि उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल कि वो कौन सा जो जीनस है वो एरोबिक है, और कौन सा जीनस जो है वो क्या है, एनारोबिक है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो जीनस रोडोस्पाइरिलियम है और एक्टिसिया है वो क्या है, रोडोस्पाइरिलियम जो है वो एनारोबिक है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको इसके जो इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता होने चाहिए कि ये काम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो जीनस है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम क्या है, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ है। ठीक है, कि ये अपनी एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल से ले सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज करके उससे अपनी एनर्जी ले सकता है। ठीक है, और इसके अलावा और ये प्लांट्स को इन्वेट कर सकता है और उनके अंदर ट्यूमर कॉज कर सकता है। जी, अब इसका इस एग्रोबैक्टीरियम जीनस जो कि इसका जीनस है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया क्या है, और इसका मेन एक तो आपको उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। क्यों? ये वो वाले कैरेक्टर्स हैं जो कि क्लासिक कैरेक्टर्स हैं, मतलब जिसमें आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है, उसकी फिजियोलॉजी क्या हो सकती है, उसका मेटाबॉलिक पोटेंशियल क्या हो सकता है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो हम नहीं दे डीएनए सीक्वेंस नहीं दिखा रहे। ठीक है, इस तरीके से आप नीचे देखें कि आप ऊपर वाले का एग्रोबैक्टीरियम का क्या था कि वो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ है, नीचे वाले का देखें कि वो हेटरोट्रॉफ है, और इसके बाद कीमोलिथोट्रॉफ्स भी हैं। ठीक है, कीमोलिथोट्रॉफ्स वो होंगे जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी एनर्जी लेंगे, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके अपनी एनर्जी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर, ये केमिकल्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कीमोलिथोट्रॉफ्स। कीमोलिथोट्रॉफ मतलब वैसे तो उसका मतलब है कि रॉक ईटर, कि इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं उनको यूटिलाइज करके जो है ये अपनी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है राइजोबियम है, राइजोबियम जो है, राइजोबियम क्या करता है, लुक एट द राइजोबियम। इस तरीके से आप राइजोबियम को देख सकते हैं कि राइजोबियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस टेबल को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि राइजोबियम जो है, ठहर जाओ बच्चों, थोड़ा सा आप इसको वेट करें। इन दिस वे आप देखें कि इसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है लास्ट वाले की रिक्टिसिया की, और इसका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर क्या है। अब आप देखें बच्चों कि ये जो अगला क्लास है बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया की, ये डिफरेंट अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया से। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन कर सकते हैं और डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर दे आर प्रेजेंट। ठीक है, अब ये देखें कि टेबल नंबर, लुक एट द टेबल नंबर 22 पॉइंट, ये बच्चों इस टेबल को अगर आप देखें तो ये टेबल शो कर रहा है
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को, और आप देखें कि अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया के यहाँ पे स्पीशीज दिखाई गई हैं। व्हेन वी से अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, तो आपको जस्ट उनके नेम आने चाहिए, मतलब उसमें दोनों आना चाहिए, जीनस का नाम भी आना चाहिए और स्पीशी का नाम भी आना चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे आप देखिए ऊपर वाला क्या है, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, और नीचे वाला क्या है, नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जिसमें आपको देखें कि नाइट्रोबैक्टर दिखाया गया है, ठीक है, और स्पीशीज दिखाया गया, और इस तरीके से सिर्फ इनके नाम आने चाहिए इनमें ग्रुप में इसमें, ठीक है। और ज्यादा इसको अभी इस फिर चूंकि हम इसको समराइज कर रहे हैं कि चैप्टर में से मेन है पॉइंट्स हमने किस तरह फिल्टर करने हैं, उसके बाद हम Dear student, look at the figure number 22.12. This figure is showing the phylogenetic relationship among the major groups within the beta proteobacteria. तकरीबन ये 6 और 7 होंगे, आई थिंक सो 6 ग्रुप्स हैं, इनके नेम एटलीस्ट आपको आने चाहिए, ठीक है बच्चों। Dear student, consider table number 22.3. This table is showing some selected bacteria from the beta proteobacteria class. Look at this: Bordetella, and then Burkholderia or Neisseria, and there are the variety of the bacteria: Nitrosomonas and Thiobacillus. Now, just consider their oxygen requirement and distinctive characteristics from this table. So in this way you can relate, or you can classify on the variety of the bacteria, especially alpha proteobacteria, beta proteobacteria, or variety of various groups of the proteobacteria, phylum proteobacteria, और कौन कौन से characters, because there is a long list of the characteristics. तो आप सिर्फ अभी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और उनके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो परफॉर्म ऐसे मेटाबॉलिकली, उनको माइंड में रखिए, ठीक है। Now look at this, the class Gamma proteobacteria. Gamma proteobacteria is also a large group, and they have the variety of the physiological characteristics. They are different. Mostly they are the chemo organotrophic, and facultatively they are considered as anaerobes. ठीक है, ये anaerobes भी हैं, aerobic भी हैं, facultatively anaerobes हैं, मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये aerobically रह सकते हैं, if oxygen is not present they can live anaerobically, ठीक है। कीमोलिथोट्रोफ्स हैं, मिथाइलोट्रोफ्स हैं। अच्छा, इसमें जो है वो आप इनके नाम आने चाहिए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के नाम आने चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट रिलेट कर सकें कि कौन कौन से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद देखें कि टेबल नंबर आगे हम डिस्कस करेंगे 22.5। ये टेबल बच्चों देखें, ये गैमा प्रोटीबैक्टीरिया को शो कर रहा है, और इसमें देखें कि ज़ूटोबैक्टर है, तो ज़ूटोबैक्टर, उसके बाद उसके देखें कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो एरोबिक है, एनारोबिक है, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अच्छा, उसके बाद उसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स क्या हैं, कि ये क्या कर सकता है, ये सिस्ट बना सकता है, नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, नॉन सिम्बायोटिकली रह सकता है, ठीक है। नीचे और भी जो है वो डिफरेंट गैमा प्रोटियो के जो स्पीशीज के जो ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे देखें कि जो है वो देखिए, जो ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसे इकोलाई को हम इशेरिशिया कोलाई को ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं, और ज़्यादातर काम उस पे बायोटेक्नोलॉजी में भी उसी पे ज़्यादा यूज़ हो गया। देखें, विब्रियो को हम ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, सूडोमोनास को डिस्कस कर सकते हैं, करते हैं, बल्कि कर क्या सकते हैं, करते हैं, ठीक है। फोटोबैक्टीरियम है, और ये सारे आपको नाम एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू मेंशन और एग्जाम्पलीफाई द कलर गैमा प्रोटीबैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया की टाइप्स आती हैं, कौन कौन से नाम आते हैं, ताकि आप डिस्कस कर सकें, ठीक है। इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेशली मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आपको मुश्किल ना हो तैयार करने में। इन दिस वे अगर आप जब सिलेक्ट करेंगे तो फिर डिटेल स्टडी आपके लिए ईजी हो जाएगी। पहले मेजर पॉइंट्स पढ़ें, ताकि हम मेजर पॉइंट्स को आप इसको फिल्टर कर लें, उसके बाद आपको डिटेलिंग समझ आएगी। अदरवाइज सारा स्टूडेंट उमूमली जो है वो पढ़ तो लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन उनका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है। Look at the class Delta Proteobacteria.
They are not considered as a large group of the proteobacteria, and morphologically and physiologically they are different from the rest of the proteobacterial types, and mostly they are the chemoorganotrophs. What is meant by this? That they can mostly they are anaerobes and they can generate sulfide from the sulfate and sulfur when they oxidize the organic material. In this way, they can generate sulfide. Okay, and they have the 8 orders and 20 families. Look at the figure 22.31. इसमें आपको जो है वो families की डिटेल नजर आएगी, ठीक है, and most of them are chemoorganotroph. Look at the figure number 22.31, and this figure is showing the phylogenetic relationship among major groups within the delta proteobacteria. Okay. अच्छा, डेल्टा बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया आएंगे, उसकी उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कौन सी हैं, उनके मेजर जो फंक्शन है, डिस्टिंक्टिव फंक्शन कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट टेबल 22.8 में देखेंगे. Table number 22.8 is showing the some epsilon bacteria as well as the delta bacteria. Look at this. First of all, look at this. Delovibrio, D-sulfovibrio, then look at the epsilon bacteria, Helicobacter and Campylobacter. Now look at their oxygen requirements. Some are aerobic, some are anaerobes, some are microaerophilics. Okay, and now these are the their distinctive characteristics. How they can use sulfide, can generate sulfide by using the sulfate or by through the oxidation of the organic material. ये यहाँ पे इनकी variety of characteristics लिखे हुए हैं, ठीक है. और जो है वो in the case of the जो आप देखेंगे Campylobacter जो कि एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया को शो करें, और हेलिकोबैक्टर के अंदर look at this कि ये हेलिकोबैक्टर जो है वो जब हम इसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं थ्रू बायोकेमिकल टेस्ट, तो कैटालेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट आते हैं, ठीक है. और ये ज्यादातर गैस्ट्रिक म्यूकोसा ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है. और जबकि ये जो है कंपाइलोबैक्टर है, कंपाइलोबैक्टर भी क्या है, ये माइक्रोएरोफिलिक है, और इसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स को आप देखिए, ठीक है बच्चों. And before at the last, we are going to discuss about the last class, epsilon proteobacteria, and they are the smallest group of the proteobacteria, and mostly they are the gram-negative rods, and they have one major order, Campylobacteriales, और इसके अंदर 3 families हैं, ठीक है. अब ये है कि ये just हमारी summary थी about the chapter, and one of the important phylum of the bacteria, that is the proteobacteria. When we discuss about the taxonomy, that how microorganism, especially the class of the bacteria, can be grouped or can be classified on the basis of the similarities and dissimilarities, तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि when we talk about the proteobacteria, तो proteobacteria की जो फर्दर आगे 5 ग्रुप्स हैं, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, बीटा प्रोटोबैक्टीरिया एंड गामा, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन, 5, इनके अंदर among these 5 ग्रुप्स जो है वो कौन सी सिमिलरिटीज हैं और कौन सी डिससिमिलरिटीज हैं. जाहिर सी बात है जो जो सिमिलरिटीज होंगी उसके ऊपर इसकी बेस पे एक टेक्सा के अंदर हम उसको प्लेस करेंगे. In early lectures we have discussed all detail related to the classification, taxonomy and systematics, ठीक है. अब वो आपके माइंड में सारे पॉइंट्स होने चाहिए जो हमने इतनी तरह की टेक्सोनमीज और कैरेक्टर्स सारे डिस्कस किए हैं, बेसिक रूल्स ऑफ टेक्सोनमी, क्लासिफिकेशन हम करते कैसे हैं, वो सारी चीजें बच्चों आपको पता है, ठीक है. अब ये है कि इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय द प्रोटियोबैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद प्रोटियोबैक्टीरिया की मेन कैरेक्टर्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने अर्ली में भी पढ़ा, डिस्कस किया है प्रोटोबैक्टीरिया का मीनिंग क्या है, प्रोटोबैक्टीरिया के अंदर मेजर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं,
इनका स्पेसिफिक हैबिटेट क्या है, कहीं ये पैथोजेनिक तो नहीं है सारे, या ऐसा तो नहीं है कि ये सारे ग्राम पॉजिटिव हैं, नहीं है ना, सारे ग्राम ग्राम नेगेटिव ज्यादा हैं, ठीक है। कौन से पैथोजेनिक हैं, कौन से जो है वो किस चीज को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, क्या ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स हैं, कीमोलिथोट्रॉफ्स हैं, क्या चीज हैं ये, ठीक है। और अमंग द प्रोटियोबैक्टीरिया विच वन इज द लार्जेस्ट ग्रुप, जैसे हमने कहा कि अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया जो वो लार्जेस्ट ग्रुप है। अब अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया का बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया से क्या डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं। अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी उसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया की, प्रोटियोबैक्टीरिया की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डिफरेंस वो बन जाएगा उसका। और बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया के मेजर ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इस तरीके से जो है वो डेल्टा है, गैमा है, एप्सिलॉन है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। और फाइलोजेनेटिक ट्री ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में भी। ये बच्चों एक शॉर्ट सी समरी थी, तब इंशाल्लाह हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, तमाम फिगर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट वॉज जस्ट ओवरव्यू अबाउट द चैप्टर, ताकि थोड़ा बहुत स्टूडेंट को जो है वो आइडियाज हो जाए इस चैप्टर के बारे में, ताकि हम इजी से शुरू करें, इजी वे से, ताकि जब स्टूडेंट डीप में पढ़ें तो उनको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है बच्चों। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है, और इसको एंजॉय करके पढ़ें, समझ रहे हैं बात, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।